the fate of every country is largely impacted by its law. So somewhere we can say that lawyers and law shape the country. तो इस हिसाब से लॉयर होना और लॉयर बनाना दोनों ही बहुत मुश्किल काम है. Luckily I have a lady with me today who has done both, जो लॉयर भी हैं और लॉयर्स बनाती भी हैं. So welcoming for the first time the most trustworthy professor, Dr. Ekta. Welcome to the podcast, ma'am. Hi Kirti, how are you? All good. आपको कैसा लग रहा है आज आपके खुद के पॉडकास्ट में बैठ के? बहुत अच्छा. It's a first time for me. Let's see what will happen, but it's a first time for me. Because आज तक हमने क्लासेस में बच्चों को ही पढ़ाया है. आज one I am talking to you very first time, तो let's see what will happen. It will go well. So start करने से पहले तो अच्छा I know you, हम मिल चुके हैं पहले, बट फॉर द ऑडियंस आई वांट टू नो आप किस बैकग्राउंड से आते हो एंड वेयर वर यू बॉर्न, कैसे यहाँ तक की जर्नी आई? So I'll start with the born. So basically I belongs to Sonipat, Haryana, but born and brought up from Delhi. ओके. My entire family, my father, mother, you can consider entire family, they don't have any sort of relation with education. कोई relation नहीं है उनका education से. I'm the only person who is doctorate in my family. In the entire family you can consider. सबसे ज़्यादा हाईली एजुकेटेड आप ही. Exactly. चलो. So I have done my BA LLB ओके. from Uttaranchal University Law College Dehradun and masters 2 time from Uttaranchal University and one of the topmost institution of India, that is National Law University. वाओ. सो जब घर का माहौल इतना नहीं, पढ़ाकू टाइप नहीं था, तो आप इतने पढ़ाकू कैसे निकले? Yeah, ये I कैसे want हुआ? to do something for the society. I want to study. I was very, even at my initials level, I was very attentive student. I was very, very dedicated towards study. Not only study, I want to do something in my life. Because I have seen so many things in my family, like my mother is not educated, my father is not educated. So I just want to do something. It was always like, मेरे पापा हमेशा कहते थे बचपन से कि मुझे अपने एक बच्चे को ना पढ़ता हुआ देखना है. आई वॉन्ट माई किड कि वो कुछ करे लाइफ में, पढ़े. मतलब उनको नहीं पता था वॉट इज स्टडी. ही डोंट नो एनीथिंग अबाउट रिलेटेड टू इट. तो ही वॉज लाइक कि मैं चाहता हूँ मेरा एक बच्चा कुछ करे लाइफ में, पढ़े. माई ब्रदर इज लाइक कि ही इज़ वेरी लीस्ट इंटरेस्टेड इन स्टडी बिकॉज ही इज़ वेरी बिजनेस माइंडेड पर्सन. सो ही इज़ लाइक कि नहीं, वही एग्जैक्टली. सो मुझे लगा कि चलो लेट्स डू समथिंग फॉर माई पेरेंट्स एज वेल एंड फॉर मी एज वेल. मुझे लगता है 80%, मोर देन 80% इनफैक्ट, जो इंडियन सोसाइटी, इंडियन पेरेंट्स का जो मेंटालिटी है, स्टीरियोटाइप है, वो यही है कि हम पढ़े ना पढ़े, हमारा बच्चा ज़रूर पढ़ जाना चाहिए. दे कम फ्रॉम दैट माइंडसेट. एग्जैक्टली यार, इट मैटर्स अ लॉट. इवन तो अभी बहुत मैटर करता है बिकॉज आई थिंक सो एवरी पेरेंट्स वॉन्ट. पढ़ना इज नॉट अबाउट द एजुकेशन रिलेटेड टू योर डिग्रीज. पढ़ना इज अबाउट, basically study creates your personality. That's true. One of the most and finest thing, I think so, it is one of the most finest issue in the society. Because study makes you a person. I think. Correct. पढ़ना सिर्फ ये नहीं होता कि हम एक गए, हमने BA LLB ले ली, हमने मास्टर्स की डिग्री ले ली. Lots of people in this society, they have a degree. But पढ़ना is not about degrees. My parents always taught me, बेटा ठीक है तू पढ़ ले, पढ़ के आ, बट वॉट द स्टडी टीचेज यू, नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट बट इट विल मेक यू अ पर्सन. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज माई फादर ऑलवेज सेड कि अगर पढ़ोगे ना यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरी थिंग ऑफ द ह्यूमैनिटी. करेक्ट. ह्यूमन बीइंग. एग्जैक्टली यू कैन तो कंसीडर. फिर लॉ ही क्यों चूज किया? यूपीएससी कर लेते, आईएएस बन जाते, आईपीएस बन जाते, व्हाई स्पेसिफिकली लॉ? Exactly, I agree with you because I heard about it. MBA give you, you can say profitable business है, right? Profitable भी हाँ, कर सकते हैं. profitable है. You can say medical में जाओ, हाँ, डॉक्टर you'll become सबसे doctor. नोबल चीज है वो. उस टाइम पे society was thinking like in that manner only. तो देखो, मैं अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कंसीडर करोगे, आई थिंक लॉ गिव्स यू अ पावर.
एंड पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब एक इंसान जिसको जस्टिस नहीं मिलता ना, पावर स्पीक्स, वी गिव्स अ पावर टू दैट पर्टिकुलर पर्सन कि वो जब स्कैर्ड है तो हम उसे पावरफुल फील कराते हैं. जब उसको सोसाइटी में जस्टिस नहीं मिल रहा है तो एज अ लॉयर और इवन एज अ लॉ टीचर वी टेल देम व्हाट इज द करेक्ट वे. तो लॉ पढ़ना इज नॉट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना या सेक्शंस पढ़ना या बैरक पढ़ना. लॉ इज ऑल अबाउट, यू कैन से कि सोसाइटी को पढ़ना. लॉ मेक्स यू अ civilized human being, according to me. Correct. Because you are a human being, but you have to be civilized human being. That's true. So law makes you a civilized human being. Correct, correct. Society को जानते हो आप law पढ़ के. You will come to know what is society, what is going on in the society, what is the backgrounds of the society, what society demands from you, where is injustice. तो as a lawyer, we work for the society. और लॉ चूज करने का यार सिर्फ एक छोटा सा रीज़न था. आई वॉन्ट टू डू समथिंग विच गिव्स मी पावर. आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर द पीपल. Understood. And that is the reason. And even I was very good in political science and all these subjects. That I was like, I have to go in this field because I am an art student ना. Student, that is the reason I want कि मैं इस profession में थोड़ा सा. तो जब मुझे, जहाँ तक मैंने थोड़ी रिसर्च की, तो अभी जब हम आप और मैं, मतलब आप तो मुझसे थोड़े सीनियर हो, थोड़े से ही सीनियर हो, बट आप थोड़े से आर्ट्स नहीं लेना, क्योंकि वो वाली होती है कि नहीं पढ़ रहा है तो आर्ट्स दिला दो. वो वाला एक माइंडसेट था पहले कि भाई नहीं कर रहे हैं तो लॉ कर लेगा, कुछ कर लेगा. एक थोड़ा वो माइंडसेट पहले चलता था. आपने कैसे कन्विंस किया अगर कि भाई मैं ये करूँगी? पता है क्या है कीर्ति, आई विल गिव ऑल क्रेडिट टू माई फादर फॉर दिस. ही नेवर सेड टेक मेडिकल. ही इज हैविंग ऑल ट्रस्ट ऑन मी. ही सेड मेरी बेटी है ना कुछ तो करेगी यार, मेरी बेटी है, कर लेगी कुछ. आई वॉज टॉकिंग टू हिम डे बिफोर येस्टरडे एंड ही टोल्ड मी, पता है मुझे ना एक सिग्मा बनाना है. शमशेर, हिज नेम इज शमशेर सिंह. ही सेड दैट शमशेर सिंह, ये शमशेर सिंह की बेटी वो ये नहीं करेगी, वो नहीं. तो वो जो ट्रस्ट है ना, ही ऑलवेज ट्रस्ट ऑन मी, ऑलवेज. एंड ही वॉज लाइक कि नहीं बच्चा, यू नो वॉट यू हैव टू डू एंड यू विल डू. आई नो यू विल डू. मैंने उनको 12th के बाद बोला पापा आई वॉन्ट टू डू लॉ. ही सेड ओके गो. वो आए, उन्होंने एडमिशन कराया. एंड ही seriously, I am telling you, each and every parent of the society, never pressurize your child. देखो, कभी भी आपको ज़िंदगी में कुछ बनना है ना, सबसे पहले आपको दिमाग से बनना है. If you want to become anything in the society, if you want to become judge, if you want to become professor, manifestation is very important in this society. Manifestation, I think, is the foremost thing कि हमें अगर सोसाइटी में चलना है, यू हैव टू मैनिफेस्ट योर गोल्स फर्स्ट, देन ओनली यू कैन डू समथिंग. यूनिवर्स सुनता है. हाँ, यूनिवर्स सुनता है. एग्जैक्टली, राइट. यू हर्ड अबाउट इट, आई थिंक सो. सो ही ऑलवेज सेड कि बेटा इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, है ना, कि कुछ करना है, आई नो यू विल डू. जो भी करना है करो. इवन आई एम हैविंग माई नीस and she loves dancing and she always used to make reels और डांस करती रहती है. and I asked him, यार इसको पढ़ने के लिए बोलो. अरे ठीक है ना, if she wants to do something in this field, let her do. क्यों फोर्स करना है उसको? That's true. क्यों फोर्स करना है? एंड वो कभी बच्चा अपना 100% नहीं दे पाएगा if you will pressurize your child. हाँ, you can show her direction कि बच्चे this is wrong, this is right. यार हमने, they are our kids, they are not our laborers. और दे आर नॉट आर प्रोडक्शन हाउस. बच्चे हैं वो हमारे, है ना. अब हम उनको ये बता सकते हैं दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ कॉल्ड नरिशमेंट. नरिश कर सकते हैं, बट हम उन्हें रास्ता दिखा सकते हैं. बट चलना तो उनको खुद पड़ेगा, आई थिंक सो, उस रास्ते पे. ठीक है, आप चलना सिखा सकते हो, दौड़ेगा वो खुद. करेक्ट, राइट. तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई थिंक सो. ही नेवर सेड लॉ कर, ही नेवर सेड UGC नेट क्वालिफाई कर, ही नेवर सेड PhD कर, ही नेवर सेड पोस्ट डॉक्टरल कर. कभी उन्होंने ये नहीं कहा. आई टोल्ड हिम पापा आई वॉन्ट टू गो विद MSI. गो, ओके.
आई हैव एवरी ट्रस्ट ऑन यू, यू विल डू समथिंग गुड, आई पूरा नो, faith है मुझे पूरा क्या फेथ करे। है। और मैंने बोला अच्छा पापा इफ वी फेल देन व्हाट विल डू? अरे कोई बात नहीं, अगर फेल होंगे ठीक है, दोबारा हम कुछ सीखेंगे, दोबारा स्टैंड करेंगे। दिस इवन आई हैव फेस्ड विद माई फैमिली। मतलब मैं आई वॉज नॉट वेरी स्टूडियस बट येस स्टूडियस। मैं मेहनत बहुत करती थी, तो मुझे ना एग्ज़ाम से पहले वाले जो घबराहट होती है ना कि भाई भूल जाएंगे, कुछ नहीं याद आ रहा। मेरा फिज़िक्स का एग्ज़ाम था, मैं घर से निकल रही थी एंड आई वाज लाइक बहुत डरी हुई क्योंकि कि भाई नहीं हो पाएगा, आज नहीं हो पाएगा। सो बोथ माई पेरेंट्स, माई मदर एंड माई फादर बोथ सेड क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगी, जा तू फेल हो क्या, जा कोई बात नहीं, गो फेल हो गया हो, इतना ही है ना, इसी चीज़ का डर लग रहा है ना, फेल ही होना, हर कोई फेल होता है बेटा, कभी कोई एग्जाम में फेल होता है, कोई लाइफ में फेल होता है, आई तो एग्जाम में हो थिंक जा। आई थिंक यू हर्ड अबाउट थॉमस एडिसन, यस सुना है ना? यस एंड आई थिंक उसने अपनी कॉलेज लाइफ में, इवन स्कूलिंग लाइफ में, उसको एज अ स्लो चाइल्ड कंसीडर किया गया था। बहुत इवन टेक अ एग्जाम्पल ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन हु गेव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, करेक्ट। है ना, हाँ। जिसको आज दुनिया भी जानती है। एंड व्हाट ही सेड, मुझे उनकी एक लाइन हमेशा याद रहती है। वो कहते हैं कि उन्होंने, लोगों ने बोला कि तू फेल हुआ और तू 10,000 बार फेल हुआ, और सी हिज थिंकिंग, कहते मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने जो 10,000 तरीके ढूंढे थे सक्सेसफुल कर होने के, वो तरीके फेल हुए हैं, मैं फेल नहीं हुआ। करेक्ट। तो दैट इज द थिंग दैट कंसिस्टेंसी नीड्स, एंड कंसिस्टेंसी, parents blessing, parents trust, our hard work will make you a person, good human being. And of course with this whole scenario, every person, not me, not you, I think every individual can do something for the society, and he'll give his best, I think so. अब आप मुझे ये बताओ, MSI का जो आइडिया आया, ये कब आया आपको? आपका ये पर्सनल एक्सपीरियंस था कि भाई लोग तो नहीं पढ़ा रहे हैं, या बच्चों को देख के आपको रियलाइज़ हुआ कि डिग्री है बट नॉलेज नहीं है? क्या ऐसा आपको हिट हुआ जो आपने सोचा कि नो, आई हैव टू कम अप विद सच एन इंस्टीट्यूशन? Actually, Kirti, I was teaching in ICFI in 2018. So during that point of time, एक बच्चा है, I'll take her name. Her name is Tanya. She was like, मैम मुझे ना आपसे क्वेश्चन पूछना है। मैंने कहा यस तान्या। यार मैं, आई एम अ टॉपर स्टूडेंट, मुझे जुडिशरी करना है, बट मैम कैसे करना है मुझे पता ही नहीं। मैंने कहा बेटा पढ़ाई कर। कहते मैम पढ़ाई तो मैं कर रही हूँ, एवरी डे आई एम स्टडिंग, बट मैं कैसे करूँ? what is this is the main thing. See, intelligence is not a problem. The problem lies in the consistency. I'm telling you once again this thing. मेरी पूरी कहानी इस चैप्टर पे चलती है, persistence, consistency, manifestation. Even I'll let you know the MSI is basically stands with Mahasiksha Nyay Sthan, you can say that. But मैंने, when I was talking to my husband, I said it कि हम इसको 3 words से consider करते हैं. M for manifestation, S for strategy, and I for implementation. And this is the goal of MSI. Wow. First you have to manifest, then you have to strategize the thing, because strategy is very important. सपनों को strategy ही पूरा करती है. करेक्ट। And how to implement that thing, वो भी बहुत important वो भी बहुत, क्योंकि आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ही ओनली यू कैन एग्जीक्यूट द थिंग इन द सोसाइटी. करेक्ट। तो मैंने उस बच्चे को देखा ना, शी वॉज लाइक कि मैम कैसे करना है. मैंने आई टेल हर कि बेटा पता है क्या है, सेल्फ बिलीव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव फर्स्टली ना, पहले आप बिलीव करना स्टार्ट करो. सी, हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, वी हैव लॉट्स ऑफ बुक. We have J.N. Pandey, we have K.D. Gaur, we have for IPC, we have S.N. Mishra, we have Narendra Kumar for Constitution. We have lots of book in our subject. तो हम कई बार ये होते हैं कि क्या पढ़ें यार, किससे पढ़ें, इसमें ये अच्छा लिखा हुआ है, इसमें इस चीज़ को फिलोसफिकल मैटर से लिखा हुआ है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है जर्नली. एंड उस कंफ्यूजन की वजह से उसको समझ नहीं आता वो कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े. करेक्ट. पता है, व्हेन आई वाज स्टडिंग फॉर माय यूजीसी नेट ना, मुझे भी यही रहता था. आई वाज लाइक मुझे एक बुक दे दो और मुझे बता दो सिर्फ इस बुक से पढ़ना है, आई विल क्वालिफाई दिस एग्जाम. और जब लोग आके कहते हैं नहीं इससे भी पढ़ना है, इससे भी पढ़ना है, ये भी कवर करना है, आई कांट डू दिस थिंग. नहीं होता.
because we can't understand each and every author. करेक्ट. ये तो यू कैन हाँ, हाँ बिल्कुल, वो तो बिल्कुल, है ही, I हम agree. नहीं अंडरस्टैंड I कर agree. सकते. तो आई लेट हर नो कि ओके उसके इस क्वेश्चन ने ना मुझे आज आफ्टर सो मैनी ईयर्स आई एम थिंकिंग कि यार उसका क्वेश्चन कितना अच्छा था. इवन आई शुड डू समथिंग कि मैं बच्चों को, ठीक है हार्ड वर्क, एवरीबडी इज डूइंग हार्ड वर्क, बट प्लानिंग और स्ट्रैटेजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. करेक्ट. कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो MSI को स्टार्ट करने का रीज़न ही ये है. थी बिजनेस इज़ अ पार्ट ऑफ थिंग, बट द मेन गोल इज़ दैट टू बूस्ट द स्टूडेंट, टू लेट हिम और हर नो कि बच्चा यू कैन डू, करेक्ट. वो टू विश्वास दिलाना एनहांस बहुत- हिज मेंटल स्ट्रेंथ. आज के टाइम में ना, टुडेज जनरेशन, मेंटल स्ट्रेंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ किड. Correct. That's है ना? so true. That's true. Mental strength is very important. And mental strength, consistency, self-belief, persistence, manifestation, strategy, planning, and guidance, mentorship, this will itself make a struggle, and with this thing you will go through. You heard about Manoj Kumar Sharma? नहीं, बताइए. 12th फेल तो देखी होगी. हाँ हाँ, अच्छा, है ना? वो मनोज को, हाँ, obviously, yes, yes. You all He know, is हाँ. IPS officer. Yeah, I है know. ना? 12th Yes, fail I've तो seen देखिए. that movie. See, he is a 12th fail person, है ना? बिल्कुल. And see him today. him Correct. today. कुछ That's बोलने की जरूरत ही नहीं है कुछ हमें. बोलने की जरूरत नहीं है. कुछ सच बोलने में. की जरूरत नहीं है. सच See him में, today. सच में. और How? पर मुझे ना एक चीज समझ में आती है, वो जो उनका एरा था, एक हमारा एरा था, जो अब की जनरेशन है ना, उनके पास डिस्ट्रैक्शन के लिए बहुत चीज़ें हैं. Okay. वेरी ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत आराम से आप उनको पढ़ने बिठाओ. एंड जैसे मेरे घर में भी आई हैव यंगर सिबलिंग्स, एंड व्हेन आई सिट विद देम, आई नो कि वो लिख रहे हैं कुछ, बट दे आर थिंकिंग समथिंग एल्स कि अच्छा इसके बाद ना आई हैव टू गो एंड प्ले क्रिकेट, और वहाँ पे ना मैं उसको ये वाली बॉल मारूंगा, ये कर, वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है. तो एज अ पेरेंट, बिकॉज बिफोर बीइंग अ टीचर, हम चाहते हैं, बीइंग अ प्रोफेसर, बीइंग अ टीचर, आप चाहते हो कि आप हर बच्चे को अपने बच्चे की तरह Exactly. पढ़ाओ, है ना. तो मैं वहाँ से ये क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ कि जो बच्चों का ये जो डिस्ट्रैक्शन है, आप उसको कैसे टैकल करते हो? बीइंग अ मदर एज वेल, यू हैव अ टॉडलर एट होम, तो आप उसका डिस्ट्रैक्शन कैसे कंट्रोल करते हो? यार वैसे वेरी नाइस क्वेश्चन. आई एग्री विद यू. वेरी नाइस क्वेश्चन. बिकॉज हाँ, यू कैन से दैट वी हैव लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. वी हैव मोबाइल फोन्स. बच्चों की स्टडीज भी सारी यू कैन से लैपटॉप्स पे, आईपैड्स पे बिल्कुल, होती है. बिल्कुल. पीपल हैव लॉट ऑफ, यू कैन और से, वो कब ब्राउज करते करते क्या ब्राउज करने क्या लग ब्राउज जाते हैं ना, सी उसका. दिस इज द फोरमोस्ट ड्यूटी ऑफ द पेरेंट. हम्म. है ना? यू आई I मस्ट agree, से, बिल्कुल. बिकॉज आई एम ऑल्सो हैविंग अ सन ऑफ 3 years old. बिकॉज देखो, दिस इज द फोरमोस्ट ड्यूटी ऑफ अ पेरेंट कि आप जब एक फाउंडेशन क्रिएट करते हो ना, व्हेन यू मेक अ ट्री, तो जब हम एक जड़ लगाते हैं ना, तो उसमें हम पानी देते हैं, है ना, अच्छी सी खाद डालते हैं, तब वो ट्री पनपता है, फिर उसमें फूल लगते हैं, फिर उसमें पत्ते लगते हैं, तब वो एक अच्छा सुंदर बनता है. ठीक है. तो मेरा ये मानना है एज अ पेरेंट, हमारी ड्यूटी है, वी शुड टीच एट द इनिशियल लेवल्स कि बच्चे दिस इज राइट, प्लीज डोंट डू दिस एट दिस लेवल, यू विल गेट दिस थिंग इन अ सर्टेन एज. मेरा ये मानना, जब एक माँ बाप हमारे टाइम पे हमें ये होता था कि मम्मी फ़ोन चाहिए. नो, यू हैव टू फर्स्ट गो थ्रू हाँ, विद योर 10th और correct. 12th स्टैंडर्ड, उसके यू विल बाद गेट अ मिलेगा, फोन. बिल्कुल. आज ये नहीं है. आज स्टूडेंट्स, यू कैन से, मेरे को लगता है नर्सरी स्टूडेंट इज हैविंग अ फोन. और मैं इवन मैं मेरे खुद की नीस है, मैं घर जाती हूँ, आई हैव सीन सो मेनी थिंग्स. मैंने कहा बच्चे टू हुम आर यू कॉलिंग? मेरा फ्रेंड का फ़ोन है ना बुआ, आई ऑल्सो वॉन्ट अ फ़ोन ना, मुझे भी फ़ोन चाहिए. so तो true. सी एज अ पेरेंट ना, आई थिंक सम ट्रेडिशनल प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट to prevail at this point of time as well. I know technology change हो गया है, modernization is coming, we are living in that sort of era, we need change, society is dynamic, society बदलेगी, everything will change in society, but some sort of things which is enrooted in our Hindu culture is very important to raise a child. So we should teach him कि no बच्चा, don't go for this thing, don't do that particular thing, you should go in this way, we have a that sort of path, ये रास्ता सही है. Now it's up to the child.
और आई डोंट थिंक सो एट द इनिशियल लेवल 3 और 4 4 साल का बच्चा ये नहीं समझेगा. मुझे नहीं लगता इतना वो रहता है कि मैं अपना करूँगा. इफ आई विल से टू माई बेबी ना यू हैव टू ईट बनाना यू विल बिकम स्ट्रॉन्ग, तो ही सेड ओ मम्मा येस आई विल बिकम स्ट्रॉन्ग ना, ओके आई ईट बनाना. So we have to tell, at least I know we are busy at this point of time, everybody is working, but some initial teachings we should give to our children ki there is beta you have to go at this path, don't go, don't distract, you have certain goals, you have to follow that goals, you can do that thing but this is a side thing. Correct. आप जाओ आप करो, because see I think enjoyment is very important, right? For mental strength as well, ठीक है, but you have to fulfill that particular subject matter. After that you can go and do anything, because I think enjoyment is also necessary in the society, and even it somehow develop the child's brain as well. I think so. तो ऐसे कभी पढ़ाने के टाइम पे हुआ है आपके साथ हाँ, कि बच्चे यार, बहुत बार ऐसे डिस्टर्ब कर रहे हैं आपको, फिर आप क्या करते हो? मतलब कोई इंसिडेंट बताओ मुझे. यार पता है क्या है, वैसे यू ये क्वेश्चन बड़ा नाइस है. व्हेन आई वाज टीचिंग मेनी स्टूडेंट्स आर देयर. अभी रिसेंट है, व्हेन आई वाज डूइंग सेमिनार एट वन ऑफ द इंस्टीट्यूट, तो 2-3 स्टूडेंट्स वर सिटिंग बिहाइंड इट. दे वर लाइक ही हा फोन में वो उसको दिखा रहा है, उसको वो दिखा रहा है. द कंडीशन वाज लाइक हॉरिबल. तो मैं पता क्या करती हूँ, जो मेरी स्ट्रैटेजी है, मैं उस टाइम पे किताब बंद करके रख देती हूँ. आई नेवर सेड एनीथिंग टू एनी चाइल्ड. मैं पूछती हूँ इधर आ, बता क्या बात है, ताकि हम सब हंसें. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. और लेट मी नो तुझे पढ़ना है या यू वॉन्ट अटेंडेंस, लेट मी नो. वो कहता है, और आज के बच्चे यार ऐसे भी हैं, दे सेड मैम आई जस्ट वॉन्ट अटेंडेंस. हाँ मुझे दे दो, मैं जा रहा हूँ. वो तो आई सेड तुझे अटेंडेंस भी नहीं मिलेगी, तू जा यहाँ से, बस तू जा, यू गो. एंड वी एज अ टीचर वी शुड टेल देयर पेरेंट्स कि इसको नहीं पढ़ना, ही डोंट वांट टू डू दिस थिंग, उसको कुछ और कराओ. आस्क हिम, लेट हिम काउंसिल. उससे पूछो व्हाई आर यू प्रेशराइजिंग हिम कि इस डायरेक्शन में जा, ये कर वो कर. व्हाई, व्हाट इज अ नीड कि उसे एक लॉ की डिग्री लेनी है या MBA की डिग्री लेनी है? एंड व्हाट विल हैपन आफ्टर MBA एंड आफ्टर लॉ विद द डिग्री? आई डोंट थिंक सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप एक डिग्री के साथ कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में. बिल्कुल. आई हैव हर्ड वन एग्जाम्पल. एक साउथ इंडियन कपल है एंड उसके बेबीज, आई थिंक आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर द नेम, 10 to 12 years ओल्ड है, और उन्होंने कभी स्कूल नहीं गए. वो अपने आप उनकी स्कूलिंग करते हैं. वाओ. स्कूल में व्हाट इज देयर थिंकिंग? मैं जिस स्कूल से पढ़ी हूँ, मेरा भाई उसी स्कूल से पढ़ा, मैं भी उस स्कूल से पढ़ी हूँ. आप भी उसी, करेक्ट. हम तो सेम ही स्कूल से पास आउट हुए. तो आपके टाइम पे जो टीचर्स थे वही टीचर्स मेरे साथ भी थे, मेरे भाई के साथ कुछ पार्ट ऑफ टीचर्स सेम थे, कुछ बदल गए. अब तो बिल्कुल ही काफ़ी ही टीचर्स बदल गए, 2-4 बच्चे हुए हैं उसमें. तो मुझे ना ये चीज़ रियलाइज़ हुई है अभी गोइंग फॉरवर्ड. हमारे टाइम पे इट वाज स्टिल एजुकेशन जिस पे फोकस ज़्यादा था, कि आप पढ़ रहे हो, आपका होमवर्क कंप्लीट है कि नहीं, डिसिप्लिन पे, इंग्लिश में बात करनी है, हिंदी में नहीं करनी है, ऑल ऑफ दैट. सो इट वाज लाइक दे वर ग्रूमिंग अस बेटर. नाउअडेज आई डोंट थिंक कि हमारा प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन एजुकेशन पे है. हम पढ़ नहीं रहे, हम रट्टाफिकेशन करते हैं. पहली चीज़ कि भाई रट लो, उगल दो पेपर में, अच्छा उगल दिया तो ठीक है, मार्क्स मिल गए, जाओ. दूसरा, इतनी सारी एक्टिविटीज़ है ना जो अपने आप में एक डिस्ट्रैक्शन है बच्चे के लिए, कि मैं क्या क्या करूँ, वॉट ऑल शुड आई डू. आई हैव टू प्रिपेयर द प्रोजेक्ट फाइल, आई हैव टू डू दिस. बीइंग इन 12th क्लास, बीइंग अ 12th पर्सन जिसको बोर्ड्स देने हैं, उसके बाद 1000 चीज़ें करने के लिए. मुझे अब कोई बच्चे ऐसा है जिसको प्रोजेक्ट फाइल बनानी नहीं आती, वो उसका फोटे ही नहीं है, नहीं कर सकता वो, बट उसको बनानी पड़ेंगी क्योंकि उसको नंबर मिलने हैं उस पर. तो अब वो अपनी फीमेल फ्रेंड्स के पास फाइल्स लेके घूमेगा कि भाई प्लीज़ डेकोरेट कर दो, बना दो. एक वो डिस्ट्रैक्शन है. तो ये ना 10th 11th 12th जो क्रूशियल ईयर है, उसमें हम पढ़ाई से ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ इतनी कर रहे हैं कि जब हम बाहर निकलते हैं हमें बहुत ईजी लगती है दुनिया की, अरे यही तो करना है, यही तो करना है. बट इन द रियल वर्ल्ड इट इज़ सो डिफरेंट. जो आप 11th 12th में पढ़ते हो, जो आर्ट्स आपने पढ़ी है, जो मेडिसिन मैंने पढ़ी है, मेरे नीट क्लियर करने के बाद आपका लॉ जब शुरू होगा तब दुनिया पलट जाती है एकदम ही. जो मुझे लगता है जो आप इतने से डब्बे में थे वो इतना बड़ा हो गया, अब आपको पता ही नहीं, क्योंकि आपको स्कूल ने ग्रूम ही नहीं किया. वैसे
ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो आप जब पढ़ाने जाते हो तो आपके पास ऐसे बहुत बच्चे आते होंगे जिनको, मुझे याद भी आप बोल रहे थे कि स्पेलिंग भी करेक्टली उनको नहीं पता। एग्जैक्टली। तो ये जब आपके पास वो बच्चे आते हैं, बिकॉज पेरेंट्स की तो एक्सपेक्टेशन है कि भाई मेरा बच्चा तो 12th पास है, इसको इतना आता है, अब जी हम एकता जी के पास भेज रहे हैं, अब हमारे बच्चे का रिजल्ट आ जाना चाहिए। आप कैसे टैकल करते हो उस चीज़ को, क्योंकि ग्रूमिंग ही नहीं ठीक हुई उसकी तो बेसिक। सी कीर्ति, मेरा थोड़ा सा ओपिनियन इसके रिगार्डिंग थोड़ा डिफरेंट है. आई एम दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन, if we tell the person na, if we tell the child you have to do this thing, that thing, this thing, matlab we have if we present so many things in front of the child, तो वो जब different different activities करेगा ना, he'll come to know उसकी फोटे का. मुझे ऐसा लगता है. हमारे टाइम पे ना, आई एम टेलिंग यू वन थिंग वेरी वेरी डायरेक्टली, कि हमारे टाइम पे प्रॉब्लम क्या थी. द मेन प्रॉब्लम इज दैट कि हमें ना एक ही चीज़ बोली जाती थी, दैट यू हैव टू स्टडी, नथिंग एल्स. आपको पढ़ना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको पढ़ना है, आप पढ़ो. ठीक है, आप पढ़ो, आप पढ़ोगे तो कुछ बनोगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं बनोगे. ठीक है, ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स ने नहीं बोला ऐसा, बट द जनरल थिंकिंग इज लाइक दैट ओनली. आप पढ़ोगे तो कुछ बनोगे, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं बनोगे. आपकी लाइफ है, आप देखो. एंड द थिंग इज दैट टुडेज पेरेंट्स आर समहाउ गुड एज वेल इन सर्टेन सॉर्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर, और कुछ मैटर्स में प्रॉब्लम भी है, क्योंकि कुछ मैटर्स में, एज आई टोल्ड यू बिफोर, ट्रेडिशनल अप्रोच इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, like in distraction things and all. See, aaj even in today's generation we present so many things in front of child. I was in hospital, I have seen one parent, the doctor is saying to him, iska jo man karta hai isko wo khilao. What she did, उसने पहले बनाना रखा उसके सामने, उसने कहा मुझे नहीं खाना, उसने एप्पल रखा, उसने मतलब उसने 21 total 21 dishes. I am telling you a true based story of 2.5 years old child, and he was like मुझे नहीं खाना. उसने 21 के 21 जो भी dishes थी वो रिजेक्ट की. And he said कि मुझे वो जो 22वीं, like for example I just want to eat omelette, nothing else. He was like that. So na, we are grooming, parents are doing their level best at this point of time as well. I never think parents is that sort of word कि कभी भी कोई माँ बाप अपने बच्चे के लिए कुछ गलत कर सकता है. Seriously, as a parent I am telling you this thing best, कि वो हमेशा best try करता है. और आज के टाइम में ना, पहले parents were like, we are the authority, you are not our parents, you are kid, you have to behave in this manner. And today's generation is like, okay baby, please आप बताओ आप क्या खाओगे, you are our boss, please कर ले यार, कैसे करना, baby boss, तू कर ले बेटा, तू कर ले बस. And even this thing na, somehow is very good, somehow they have certain sort of negative impacts as well. See, हर चीज़ की ना एक पॉजिटिविटी होती है, एक नेगेटिविटी होती है, एवरीथिंग इन दिस सोसाइटी. ठीक है, हमारे टाइम पे एक पॉजिटिविटी ये थी कि चलो हम बच्चों को पढ़ाते थे, एंड ऑफ कोर्स दोज बुक्स जो इतने अच्छे स्कॉलर्स ने लिखी है, कुछ ज्ञान तो देती ही होंगी, है ना, वो हमें देती थी, एंड वी कम टू नो. एंड टुडेज पेरेंट्स आर लाइक, नो, वी विल गिव टू आवर चाइल्ड द प्रैक्टिकल अप्रोच, which is very important as well. I think so. बिल्कुल. Books are important. See, what is the need of this time is that to balance. Balancing is the main thing. Right. You have Maybe to study. that's the word. Correct. You have to study. And you have to do recreational activities or whatever you want to do in your life. There are certain sort of things. आज पेरेंट्स क्या करते हैं, ठीक है बेटा, इफ़ यू वांट टू प्ले लॉन टेनिस, गो प्ले. यू वांट टू प्ले क्रिकेट, ओके जाओ. इफ़ यू वांट टू डांस, ठीक है. इफ़ यू वांट टू सिंग, गो. ठीक है. एंड द चाइल्ड विल कम टू नो ये मेरा फोटे है, एंड ही विल गो इन दैट फील्ड. टेक अ एग्जाम्पल ऑफ शुभनम गिल, राइट? शुभनम गिल. Take an example of that particular guy, I think Abhishek Sharma, right? And today's generation know where we have to go. Like my own brother wants to play for India, and he's a very good cricketer. But
ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ थिंकिंग कि नहीं पढ़ाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो नहीं हो ऐसा पाया। ये नहीं होता है, ये क्रिकेट नहीं, उस टाइम पे इतना पेरेंट्स उस चीज़ को फोकस करते, वो नहीं जा पाया. And see, you have your own brother. If he wants to go in that particular profession like photography and all, and you are completely supporting him. Yeah, completely. See, this is the advantage of this time. So there should be a balance. There should be a balance. There should be a balance because we want to study as well. ठीक है, study is very important. Those books are very important because if somebody, हमें किसी ने कुछ लिख के दिया है अपने एक्सपीरियंस और उस चीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिकॉग्नाइजिंग, द वर्ल्ड इज कंसिडरिंग, ऑफ कोर्स दे हैव सर्टेन सॉर्ट ऑफ व्यूज. वी हैव टू अंडरस्टैंड द कार्ल मार्क्स, we have to understand the Gandhi, then only we will come to understand the society ideology. बिल्कुल. If you want to become a good person, if you want to become a good human being, firstly you have to go through the thoughts of Amartya Sen, you have to go through the thoughts of B.R. Ambedkar, then only you will able to understand Upendra Bakshi. जब कोई ऐसे बच्चा आता है जो थोड़ा पढ़ने में नहीं उतना अच्छा रहा, डिस्ट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा, और उनके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है जी आप तो इसको जज ही बना दो, तो आप उस सिचुएशन में क्या करते हैं?